Good morning, children. Today we will study fourth chapter of the Western Desert. Rajasthan is divided into two parts by the Aravalli Range. The western side is covered with sand and consists of the Great Indian Desert. It is also known as the Thar Desert. It extends from Rann of Kutch in Gujarat to the borders of Haryana. The Great राजस्थान है वो क्या है, डिवाइड है दो पार्टों में। अरावली रेंज और रेंज के इससे वो कवर करता है, एक तरफ सैंड, दूसरे तरफ सैंड से कवर रहता है, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, उसको थार डेजर्ट भी कहते हैं। ये एक्सटेंड करता है रन ऑफ कच्छ से, गुजरात से, और बॉर्डर ऑफ हरियाणा तक ये जाता है। Indian desert covers a large part of Rajasthan. A desert is a vast area of flat land covered with sand. It is also called the sandy plain. Some hills of sand are called sand dunes. When strong wind blows, these sand dunes tend to shift. These storms are called dust storms and are a common feature in Rajasthan. अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या है, सैंड से कवर है। ये ज़्यादातर कहाँ है, किस पार्ट में है, राजस्थान में है। ये फ्लैट लैंड है जो सैंड से कवर है, और इसको सैंडी प्लेन्स भी कहा जाता है। ये यहाँ पे स्मॉल स्मॉल सैंड के हिल्स नज़र आएंगे राजस्थान में, जिसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। वो सैंड ड्यून्स कभी कभी सैंड ड्यून्स की जो रेत होती है वो उड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, दूसरी जगह सैंड ड्यून्स बना देती है। ये जो स्टॉर्म से ये शिफ्ट होता है, इसको डस्ट स्टॉर्म कहते हैं, और ये बहुत कॉमन फीचर है राजस्थान का। Climate and natural vegetation. The climate of the desert is very hot and dry throughout the year. Rainfall is scanty, which leads to shortage of water. Summer season is marked by hot days and cool nights. During winters, days are warm, but nights are extremely cold. अब क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन। क्लाइमेट क्या है यहाँ का, हॉट एंड ड्राई है। रेनफॉल बहुत कम होती है, जिससे पानी की शॉर्टेज हो जाती है। समर सीजन में यहाँ हॉट डेज होती हैं और कूल नाइट्स होती हैं, और विंटर्स में डेज वार्म होती हैं और नाइट्स कूल होती हैं, बहुत ठंड होती है। There is hardly any vegetation. Only thorny bushes, different varieties of cactus and people grow here. At some places, underground water comes to the surface. Such places are known as oases. Date palms are grown here, as the soil around the oasis is quite fertile. Villages are found around an oasis. A karma is a large group of people traveling across the desert. They normally rest near the oasis after a long journey through the hot desert. अब यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। यहाँ बुशेस होती हैं, कैक्टस की होती हैं और पीकर की होती हैं, और यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर कहीं कहीं पे दिख जाता है। जहाँ दिखता है उस जगह को बोलते हैं ओएसिस। वो एक पॉन्ड की तरह होती है जहाँ पे पानी दिख जाती है। उसके किनारे डेट प्लांट्स वगैरह लगाए हुए होते हैं, वेजिटेशन होता है, तो विलेज ज़्यादातर उसके किनारे ही बसी होती है। कारवास बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल करते हैं डेजर्ट में। वो नॉर्मली ओएसिस के किनारे आराम करते हैं जब हॉट डेजर्ट से जर्नी कर लेते हैं तो। There is a huge shortage of water as rainfall is very little. As a result, desert region remains hot and dry. Streams are few. The government has taken certain steps to ease the difficult life of the people living in the desert. Waters of Satluj and its tributaries now reach the deserts through the Indira Gandhi Canal, also known as the Rajasthan Canal. This has changed the life of the people and also made the desert green. Around Canal, green fields have come up over a period of time. Farmers grow wheat, gram, bajra, jowar, and
maize. Suratgarh, near Ganganagar, has grown into the biggest and largest wheat farm in Asia. शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड वाटर सप्लाई, इसमें बता रहा है कि एक्चुअली कितनी दिक्कत है पानी की वहाँ पे। रेनफॉल बहुत कम होता है, रीजन बहुत हॉट एंड ड्राई रिमेन करता है, स्ट्रीम्स बहुत कम बहते हैं और बहुत कम ही हैं नहर। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि ये स्टेप लिया जाए इन यहाँ के लोगों की डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए, डेजर्ट के लोगों की डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए। उन्होंने क्या किया, वाटर सतलज नदी का पानी और उसकी ट्रिब्यूटरीज का पानी डेजर्ट में इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू प्रोवाइड किया और उन्होंने इसको वहाँ के लोगों का हेल्प किया। इसको इंदिरा गांधी कैनाल को राजस्थान कैनाल भी कहते हैं। वहाँ के डेजर्ट को इसके कारण, सतलज नदी के पानी के कारण ग्रीन हो गए और कैनाल से पानी ग्रीन फील्ड डेवलप हो गई। वहाँ के फार्मर्स वीट, ग्राम, बाजरा, ज्वार और मेज उगाने लगे। सूरतगढ़ गंगानगर के पास एक छोटी सी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड का बिगेस्ट और लार्जेस्ट व्हीट फार्म एशिया का माना जाता है। Transportation in the desert. The camels have padded feet and can walk as well as run on loose sand. They can stay without water and food for a long time. Dust storms do not affect their vision. Camel skin is used to make tents and its hair is used to make clothes. Camels are used for plunging feeders as well as for drawing water from wells. शिप ऑफ डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट किसको बोलते हैं? कैमल को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो बहुत एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का जरिया है। उसके पैडेड फीट होने के कारण वो आराम से सैंड के ऊपर चल सकता है। वो पानी और फूड के बिना बहुत दिनों तक रह सकता है और डस्ट स्टॉर्म में उसकी आईज विजन इफेक्ट नहीं पड़ती, मतलब वो अच्छे से देख सकता है। और उस कैमल का स्किन जो है वो टेंट बनाने के काम आता है और उसके हेयर से क्लोथ्स भी बनते हैं। और कैमल जो है वो हेल्प करता है प्लॉइंग फील्ड में भी और वाटर ड्रॉइंग में वेल्स से भी, मतलब कि फील्ड में भी काम करने में मदद करता है और साथ में पानी निकालने के लिए वेल से भी मदद करता है। इसलिए कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। Life of the people. Life of the people is very difficult in such regions. Due to shortage of water and scanty rainfall, people can't grow many crops. Settlements are mostly found around an oasis. Many people live like nomads. They do not have permanent homes and move from one place to another in search of food, means of livelihood, and pastures for their animals. They are also called banjaras. Most houses in the desert region have small windows and flat roofs. The houses remain cool as the walls are thick. Some houses have underground water tanks to store water. People are cheerful despite the hardships. They love to sing and dance. Both men and women wear colorful and bright dresses. Men wear white dhotis with bright kurtas and turbans. Women wear colorful ghagra, cholis and ordis. Galgaon. लाइफ ऑफ द पीपल, लाइफ ऑफ पीपल यहाँ का कितनी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत दिक्कत वाली लाइफ होती है। शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, क्रॉप्स कम होती है। यहाँ के सेटलमेंट जो होते हैं ओएसिस के किनारे होते हैं। ज़्यादातर लोग नोमैड्स होते हैं, वो परमानेंट हाउसेस नहीं होती है जिनकी, वो एक जगह से दूसरी जगह फूड के लिए, पास्चर के लिए, एनिमल के पास्चर के लिए घूमते रहते हैं, उनको बंजारास कहते हैं। और डेजर्ट रीजन में क्या है, स्मॉल जो घर होती है उसमें विंडोज़ बहुत स्मॉल होती है और फ्लैट रूफ होती है। ये घर को ठंड रख वॉल्स थिक बनाते हैं जिससे घर ठंडी रहे और वो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर करने के लिए टैंक्स बनाते हैं।
यहाँ के लोग इतने डिफ़िकल्टी होने के कारण भी बहुत चेयरफुल रहते हैं। यहाँ पे लोग डांस करना और सिंग करना बहुत पसंद करते हैं। लोग यहाँ पे ब्राइट कपड़े पहनते हैं। मेंस धोती कुर्ता और टर्बन पहनती है और वुमेंस पहनती है घाघरा चोली और ओढ़नी। और तीज, होली, दशहरा, Diwali and Eid are some of the important festivals celebrated here. Jaipur is the capital city. It is also called the Pink City. The Thar Desert is the great tourist attraction. Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Ajmer, Kota and Udaipur are also popular tourist destinations. People visit forts, palaces, temples and some even go to the heart of the desert to see dunes. गणगौर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली, ईद, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो वो लोग वहाँ पे मनाते हैं राजस्थान में। जयपुर यहाँ का कैपिटल है, इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। थार डेजर्ट टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर भी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं। लोग यहाँ पे फोर्ट, पैलेसेस, टेम्पल्स और कोई सैंड ड्यून्स भी देखने के लिए जाते हैं। हेयर वी एंड दिस चैप्टर। थैंक यू।